Rohit, can you hear me? Can you hear me, beta? Satyendra, voice is clear, beta. Satyendra, voice is clear. Good morning, sir. My voice is clear. Yes, sir. My voice is clear. Yeah, sir. Okay. Clear, sir. Okay, fine. Rohit, can you hear me, beta? Yes, sir. Rohit, can you hear me, beta, Rohit? What's wrong with him? Sir, this is ninth class student. He's in 9th class. Okay, okay. Rohit, you are in 9th class, then please go. Yeah. Your 12th class is going on. Yeah, Rohit, I'm going to start. Sorry, Satyendra, I'm going to start the lecture now. Yes, sir. So, I hope you are ready with the lesson which we have completed Yes, till sir. now. What we have completed, are you aware of that? पता है क्या क्या कंप्लीट हुआ है अपना? Now, this lesson is, we are going Economic on this system lesson. complete हो. Yeah, ये part पे आ गया. See on your screen, Yes, right? yes, sir. Screen पे आ गया ना LPG? Yes, sir. आ गया? Yes, sir.
Yes, sir. हाँ Yes, sir. आ गया. आ गया ना? हाँ. So we have completed up to privatization, then disinvestment, then globalization. Now I am going to start with economic crisis. क्यों हुए थे? That also we finished yesterday. Causes of economic crisis. ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि what was economic crisis of 1991 or why there was a need to reform Indian economy. ये क्वेश्चन मैंने दिया था. Now need to increase. Who is that? So now we are going to start with this emergence of new economy policy. न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आ गई. एनईपी उसकी जरूरत क्यों पड़ी and what was the need for that we are going to see now. New economic policy NEP. Please note down NEP. Note down karo NEP. It is called as new economic policy. New economic policy. Who is online now? Beta, who is online? Mr. M. Tell me who are you? Fine. Finally, India approached International Bank of Reconstruction. Hello, who is you? Who are you? Fine. See, Satyendra, pay attention now. Emergence of new economic policy. Finally, India approached International Bank for Reconstitution and Development, popularly known as World Bank and IMF, that is International Monetary Fund. So India went to this particular international bank. दो बैंक थी. One was known as World Bank and one is known as IMF. ये दोनों के पास इंडिया गई and received $7 million as a loan to manage the crisis. 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1991 के पहले, तो उसके पास उस क्राइसिस को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट took a help from इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के पास से हेल्प लिया. And India got $7 million, 7 million loan. International agencies expected India to liberalize and open up economy by removing restriction on private sector and remove trade restriction between India and other country. So जब इंडिया गए 1990 में, इंडिया जब पैसा नहीं था इंडिया के पास, तो इंडिया लोन लेने गए. इंडिया वेंट फॉर अ लोन और $7 million का लोन मिल रहा था और मिला भी था. और उस लोन को लेते वक्त वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को बोला कि यू स्टार्ट टू लिबरलाइज योरसेल्फ. लिबरलाइज योरसेल्फ का मतलब है कि तुम अपनी पॉलिसी लिबरलाइज कर लो और सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दो. अगर तुम अपनी पॉलिसी लिबरलाइज करके सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटा दोगे तो तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी. योर इनकम विल इंक्रीज और तुम्हारी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तुम पूरे कर पाओगे. तो इंक्रीज योर रेवेन्यू. They gave the idea to increase revenue of India by liberalization
ट्रेड बैरियर्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ट्रेड बैरियर्स थे वो रिमूव करने को बोल दिया. इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जब बोला इंडिया को तो उन्होंने इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया दिस पर्टिकुलर कंडीशन एंड announced new economic policy which consists of wide range of economic reform. So इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों के कहने पे किया था टू कम आउट फ्रॉम द क्राइसिस. हमें क्राइसिस में थे और हमें क्राइसिस के बाहर आना था, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाहर आना था. हमारी रेवेन्यू कम थी, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, फिस्कल डेफिसिट में चल रहे थे हम लोग. तो ऐसे कंडीशंस में जब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को सजेस्ट किया कि प्लीज यू लिबरलाइज योरसेल्फ, रिमूव ट्रेड बैरियर्स, तो इंडिया एग्रीड और इंडिया ने न्यू पॉलिसी लगा ली, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. The measure adopted in new economic policy can be broadly classified into two groups. दो measures किए थे. पहला दो steps लिए थे इंडिया ने लिबरलाइजेशन, दो steps लिए थे to come out from the crisis के लिए दो steps लिए थे. And the two steps were these: stabilization measures. They are short-term measures which were intended to correct some weakness that have developed in balance of payment and to bring inflation under control. So हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाया था. बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाना मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इंपोर्ट वाज मोर देन एक्सपोर्ट. हमारा ये पूरा टेढ़ा हो गया था. इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू कम. तो पहले तो उसको करेक्ट करना, पहला स्टेप, शॉर्ट टर्म स्टेप था ये. शॉर्ट टर्म स्टेप था पहला कि पहले इंपोर्ट को कम करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ. इंपोर्ट को कम करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ वाज द फर्स्ट स्टेप. एंड सेकंड, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना. इन्फ्लेशन मींस प्राइस राइज. इन्फ्लेशन मींस नथिंग बट प्राइस राइज. प्राइस राइज को कंट्रोल करना वाज द नेक्स्ट स्टेप. ये शॉर्ट टर्म मेजर था. शॉर्ट टर्म मेजर मतलब कुछ टाइम के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम कर देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ा देना पड़ेगा. दिस वाज द फर्स्ट स्टेबलाइजिंग मेजर. प्लीज ये नोट डाउन करो. ये दो मेजर्स थे. सबसे पहला मेजर था स्टेबलाइजिंग मेजर. सबसे पहला मेजर था स्टेबलाइजिंग मेजर. ओके, इसमें क्या किया था? इट वाज अ शॉर्ट टर्म मेजर. ये शॉर्ट टर्म मेजर था. फाइन. एंड इन दिस बैलेंस ऑफ वीकनेस दैट हैव बीन डेवलप्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करना था. मतलब इंपोर्ट वाज मोर देन एक्सपोर्ट, उसको रिवर्स कर देना था. एक्सपोर्ट ज्यादा करना था और प्राइस राइज को कंट्रोल करना था. ये दो मेजर्स लिए गए थे इसके अंदर स्टेबलाइजिंग मेजर्स में. प्लीज नोट डाउन कर लो जो भी राइट में मार्क किया हुआ है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. नेक्स्ट हमने किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. दीस आर लॉन्ग टर्म. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे. दिस वर द लॉन्ग टर्म मेजर्स. Structural reforms were the long-term measures, first of all, and aim to improve the efficiency of economy. मतलब हमारी efficiency and effectiveness दो में फर्क है बेटा. पहले वो समझ लो कि what is efficiency and what is effectiveness. Efficiency हमारी बढ़ानी थी. क्यों? क्योंकि we were not efficient. We were effective, but we were not efficient. Cost control नहीं कर पा रहे थे हम लोग. तो in that sense, we have to become more efficient and increase in its international competition by removing rigidities in the various segment of Indian economy. और फिर हमने इंटरनेशनल कंपटीशन टेक करना था. हमने एक रिजिड करके रखा था अपने आप को. रिजिड मतलब हम स्टेबल हो गए थे. हम नहीं चाहते थे कि कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में, फॉरेन कंपनी इंडिया में आए. इसीलिए हमने लाइसेंस एंड परमिट एंड कोटा वाला सिस्टम रखा था. तो जब वर्ल्ड बैंक लोग ने बोला कि नहीं आप ये रिमूव कर दो, तो हमने रिमूव करते वक्त सबसे पहले वही देखा कि इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आएगी. इंटरनेशनल कंपटीशन बाय रिमूविंग रिजिडिटीज ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ. इंटरनेशनल कंपटीशन आने का मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएगी एंड फॉरेन कंपनीज विल कम टू इंडिया. हमारे पास वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी. हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगी. जैसे ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगी
हमारी इनकम बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा। इंडियन इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट एंड क्वालिटी को का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। दे हैव टू रेज देयर स्टैंडर्ड। व्हाई? अगर वो स्टैंडर्ड रेज नहीं करेंगे तो फॉरेन के सामने टिक नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? इसीलिए जब मारुति सुजुकी इंडिया में आया, पे अटेंशन, सुजुकी इंडिया में आए और इंडियन कंपनी लाइक फियाट उस टाइम की कंपनी थी, यामाहा इंडिया में आया, ओके, और तो राजदूत वगैरह बंद हो गई और व्हाट यू कॉल एज मारुति सुजुकी इंडिया में है। मारुति तो इंडियन है पर सुजुकी इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में किया मारुति सुजुकी, तो फियाट वगैरह कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। सिमिलरली टेलीविजन सेट में लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ, सैमसंग वगैरह इंडिया में आए, सैमसंग वगैरह इंडिया में आए तो ओनिडा एंड क्राउन टीवी जो हमारे पुराने इंडियंस थे वो बंद हो गए। आई बात समझ में? तो इंडिया के अंदर अंडरस्टूड, समझ, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जो लिखा हुआ है? क्लियर है? हाँ, ओके। तो इंडिया ने, हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर, तो जो आज जो लेसन का मेन मुद्दा है कि वी आर गोइंग टू हैव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर ये तीन पॉलिसी आती है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर आती है। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर आती है। स्टेबिलाइजिंग रिफॉर्म के अंदर खाली इतना ही था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो शॉर्ट टर्म थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन चेक करना। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था वो लॉन्ग टर्म थी, वो हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, नाउ balance of payment, it is a system of recording countries economic transaction with the rest of the world over a period of year. Inflation is a situation, ये तो मैंने बोल ही दिया, वही चीज बताया, रिपीट किया है। What is balance of payment? Please note down, ये पॉइंट को नोट डाउन करो। These are the two definition, ये दो डेफिनेशन है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस of a country with rest of the world, and inflation is a situation in which general price level of goods and services increases, price rise. Okay, this point to be noted down, please. Can you take the screenshot? आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो सत्येंद्र? स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, these 2 points. And afterwards you can note down the notes. ठीक है, अब आ गया लिबरलाइजेशन। लिबरलिस्ट ऑफ liberalist of liberalization, privatization and globalization. By introducing liberalization, privatization and globalization, government have revived the condition of economy, Indian economy. Revived means it has changed the complete Indian economy. Now we are going to go with a detail in liberalization. Beta, this lesson is very much important. नहीं करके anyhow around 8 to 10 marks, 8 to 10 marks, okay, ये है। Now, liberalization was introduced to with an aim to put an end to those restrictions which become major hindrance in the growth and development of various sectors. Liberalization का मतलब क्या था? पहले तो liberalization मतलब फ्री कर देना या put an end, फ्री कर देना जो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास 1990 से पहले जो रिस्ट्रिक्शन थे, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो रिस्ट्रिक्शन को हटा देना। इट इज
It is generally defined as loosening the government regulation. It is generally defined as loosening the government regulation in a country to allow private sector companies to operate business transaction with fewer restriction. पहले क्या था कि लिबरलाइजेशन के कारण सारी कंपनी सारी जो थी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, प्राइवेट के पास बहुत कम चीज था. 1990 के बाद ही प्राइवेटाइजेशन हुआ. फॉर एग्जांपल 1990 के बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट, जैसे झारखंड में रोडवेज, झारखंड रोडवेज होगी, छत्तीसगढ़ रोडवेज होगी, उसी तरह से प्राइवेट रोडवेज भी स्टार्ट हो गया. फिर 1990 के बाद ही प्राइवेट सेक्टर्स में स्कूल स्टार्ट हो गई. उसके पहले सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में थी. तो धीरे धीरे प्राइवेट गवर्नमेंट के जो वर्किंग है उसका सेम वर्किंग प्राइवेट वाले को भी दे दिया, सो दैट वो दो टाइप से इनकम मिले. एक तो गवर्नमेंट की इनकम आएगी प्लस प्राइवेट सेक्टर से कुछ इनकम आएगी. तो ये रिस्ट्रिक्शन खत्म करने बोला. सबसे पहला मुद्दा था टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन. ओके, पॉलिसी लूजन कर देने की, पॉलिसी माइल्ड कर देने की, पॉलिसी इजी कर देने की, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर आल्सो कैन टेक पार्ट इन all the activities. In relation to developing country, this term refers to opening economic border for multinational and foreign investment. इसका एक ही मुद्दा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज को स्टार्ट करना. मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया आफ्टर 1991. 1991 के बाद ही मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया. और जो आज हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज है वो है तुम्हारी, इन कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो नेचुरली मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, नाइकी, रीबॉक, फोर्ड, मर्सिडीज. ओके, ये जो बैंड्स, मतलब ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज फॉरेन कंपनीज है. ये बाद में इंडिया में आई 1991 के बाद, उससे पहले नहीं थी इंडिया में. और ये जैसे इंडिया में आई तो इंडिया की जो लोकल कंपनीज थी उसने भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया. क्यों? क्योंकि उनके साथ compete करना था. आई बात समझ में? उनके साथ compete करना था. They have to compete with the foreign country companies. So in that sense, this is the main target which liberalization focus. It focus on opening borders for the multinational company and foreign investment. पहले इनिशियली जब मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया. कोलैबोरेशन का मतलब क्या है सत्येंद्र? आर यू गेटिंग मी? कोलैबोरेशन का मतलब है कि वन इंडियन कंपनी एंड वन फॉरेन कंपनी दोनों मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं. दोनों आपस में लड़ने से बेटर है दोनों मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे मारुति इंडिया की कंपनी थी, सुजुकी फॉरेन की कंपनी थी और मारुति सुजुकी बन गई. ओके, नेक्स्ट हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा फॉरेन की कंपनी थी, हीरो होंडा बन गया. अभी तो ये कोलैबोरेशन टूट गया है, पर अभी तो कुछ कोलैबोरेशन तो अभी भी है. जैसे आपके ट्रैक्टर होते हैं जॉन धीरे, जॉन फॉरेन की कंपनी है, धीरे इंडियन है, जॉन धीरे. अशोक लेलैंड, अशोक फॉरेन की कंपनी है, ये सॉरी इंडियन कंपनी है, लेलैंड फॉरेन की है. फोर्ड एस्कॉर्ट, फोर्ड फॉरेन की है, एस्कॉर्ट इंडियन है. तो दीस आर द थिंग्स. ये जो थी ये सब कोलैबोरेशन हुआ. और फिर कोलैबोरेशन के बाद डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया और मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में पैर रख दिया. और मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आते ही इंडियन का मार्केट बूस्ट हो गया. हमारी इकोनॉमी थोड़ी राइज हो गई, थोड़ी नहीं काफी हद तक राइज हो गई. आज जो हम चेंजेस देख रहे हैं, अगर ये समझो, जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर 91 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आती तो अभी जो आप मोबाइल देख रहे हैं, अभी आप और मैं जो बैठे, ये मोबाइल नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता,
दूसरी बात, हमारे पास अभी भी वो BSNL का ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन होता था, ठीक है, जिसमें नंबर डाल के कॉल करना पड़ता था। मैसेज के लिए टेलीग्राम होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। क्योंकि ये सब कुछ जो टेक्नोलॉजी आई है वो बाहर से इंडिया में आई है। आई बात समझ में? ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी। 97, 96, 97 के बाद मुंबई में फोन आने चालू हुए, मोबाइल। आई डू रिमेम्बर बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम। 97 में आया है मोबाइल्स इंडिया में, और 2020 तक मोबाइल ने तहलका मचा दिया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स इंडिया में है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंज्यूमर ज्यादा ही होगा। सो इन दैट सेंस दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो अभी भी हम लोग धोती पहन के ही घूमते थे, फटी हुई जींस नहीं पहनते थे कोई। आई बात समझ में? दैट वाज द केस। तो लिबरलाइजेशन मतलब फॉरेनर्स सीधा सीधा इंडिया में आने लगे। अभी भी हम लोग वही बर्गर खाते थे छोटे वाला, या टिक्की खा के रहते थे, किसी को पता नहीं होता था व्हाट यू कॉल एज मैकडोनल्ड्स एंड व्हाट यू कॉल एज पिज्जा हट। लोग अभी भी पिज्जा को गांव में ऐसा ही बोलते हैं, रोटी के ऊपर सब्जी डाल के दे दी, ठीक है ना? तो बट these are the changes. So we have modernized ourselves because of this policy, thanks to IMF and World Bank. तो बेटा आज का टॉपिक खाली इतना ही है, बस यू हैव टू गो थ्रू दिस नोट्स ओनली। ये जो मैं नोट्स में मार्क ऑब्जेक्टिव वी विल डू टुमारो। जो ये नोट्स मार्क करके दे रहा हूँ, इतने नोट्स का तुम स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। ये दिख रहा है आपको? ये this one screenshot is this. Second screenshot is this. हो गया? हो गया क्या? थर्ड इधर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रक्चरल एंड स्टेबलाइजिंग मेजर्स। हो गया? एंड लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या आ गए लिबरलाइजेशन में। मैं वही बोल रहा था, कल मैंने बताया था जैसे कि अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सबसे पहले पॉलिसी थी कि इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना जरूरी था, तो ये लाइसेंस खत्म कर दिया। अभी खाली ये 5 इंडस्ट्रीज है जिसमें लाइसेंस की जरूरत है, बाकी लाइसेंस खत्म। So please make it sure that you go through this part. आई बात समझ में? ठीक है, अंडरस्टूड क्या? ओके देन, बाय। कोई डाउट है तो बता दो। ओके